گی. سبنم جی. ہیلو ساحل بھائی. ہیلو سبنم جی. ہیٹرک ہو گئی ساحل بھائی. جی سبنم جی. جی ایکچولی میں کافی دنوں سے آپ کا چینل دیکھ رہی ہوں اینڈ آئی ایکچولی لائک دا کنٹینٹ یو آر میکنگ. اوکے, آپ مومنہ ہیں سبنم جی؟ لاجیکلی دیکھا جائے تو بالکل بھی نہیں. واہ بھائی واہ, کب تک تھی آپ مومنہ؟ ایکچولی دیکھا جائے تو میں کبھی بھی نہیں تھی, کیونکہ مطلب میرے گھر پہ بھی ویسا کوئی ایگزیکٹلی تو ہے نہیں کہ ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. بٹ ہاں ان لوگوں کا بلیف ضرور ہے کہ وہ لوگ ایک مومن ہے یہ وہ. بٹ میرا ویسا کبھی نہیں رہا. بیچ میں ایک ٹائم تھا کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا, وہ بھی شاید کچھ ہی مہینوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے. بٹ ایسا نہیں کہ میں نے آج تک ایون جو قرآن ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا. کیونکہ جو قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے مجھے وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. واہ اب بھائی واہ. ترجمے کے لیے تو ہم لوگوں کو آبویسلی ہندی میں پڑھنا ہوگا. مجھے اردو بھی ہاں, نہیں آتا, عربی لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وجہ سے میرا کبھی انٹرسٹ بھی نہیں رہا کہ میں قرآن بھی پڑھوں. تو جب آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کری تھی تو کچھ سورے وورے یاد ہے آپ کو؟ ایک دو سورے یاد تھا بٹ ابھی مجھے اتنا یاد نہیں ہے. کوشش کریے, کون سا سورہ آپ نے یاد کیا تھا؟ رکیے میں تھوڑا سوچ رہی ہوں, ایکچولی مجھے اتنا یاد نہیں. لیٹ می ریمائنڈ اٹ. سورہ فاتحہ یاد کیا تھا آپ نے؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یار پرفیکٹ تو پڑھا آپ نے, یاد تو ہے آپ کو؟ یاد ہے بٹ وہ نماز پڑھنے کے لیے میں نے بس گنتی سے 4 سورے ہی یاد کیے ہیں. اس کے آگے مجھے ایون سورے کا جو میننگ ہوتا ہے مجھے میننگ بھی نہیں پتا کہ اس سورے میں کہا کیا گیا ہے. بہت زبردست. تو یہ بات تو ان کی بہت صحیح کہی ہے, اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور بلکہ جتنے مومن حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ آپ چیک کر لو. یہ بات میں نے کہی تھی کہ اکثر مومن حضرات جو ہے انہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے, اور جو پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اپنی جو لینگویج ہے ہندی میں یا اردو میں, وہ 4-5 پیج 10 پیج یا میکسیمم 15 پیج پڑھ لیا نا, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی چل کیا رہا ہے ادھر. جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ اتنی ایمبیگوس کتاب ہے, یہ انکلیئر کتاب ہے, آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیا چل رہا ہے, اور اتنی بورنگ کتاب ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. ویسے میں نے بیچ میں ایک بار یہ ایک بک تھا ہم لوگوں کے گھر پہ جس کا نام تھا قصص الانبیاء. آئی ڈونٹ نو ایون آپ کو پتا ہے یا نہیں. پتا ہے قصص الانبیاء پتا ہے. جی تو میں نے بیچ میں مطلب آئی واز ان اسکول دیٹ ٹائم. سو میرے جو ایک سر تھے ہی واز کرسچن, مطلب وہ بھی کنورٹیڈ تھے. پہلے وہ ہندو تھے, دین ہی واز کنورٹیڈ ٹو کرسچن. سو وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرتے تھے. تب تو مجھے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ علم تھا نہیں. تو میں نے ایسے گھر پہ بات کیا تو مجھے سجیسٹ کیا کہ تم یہ بک پڑھ سکتی ہو, اس میں اسلام کا ہسٹری ہے. میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا نہیں, پھر بھی میں نے پڑھنا شروع کیا. بٹ جب تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا وہاں تک میں نے کچھ پڑھا تھا. اس کے بعد جب ہم لوگوں کی یہ جو بولتے ہیں حضرت محمد, ان کا جب واقعہ شروع ہوا, تھوڑا سا ہی پڑھنے کے بعد مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہوا کہ میں آگے پڑھوں. وہیں کے وہیں میں نے وہ بک بند کر کے چھوڑ دیا تھا. نہیں, میں یہ چیلنج جو ہے نا جی سبنم جی, جی جی تقریباً 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں سب کو چیلنج دیتا ہوں جتنے مطلب اس میں مومن حضرات ہیں, اور جی نان مومن کو بھی اگر پڑھنا ہے پڑھ کے دیکھ لو. چیلنج دیتا ہوں مومن حضرات کو, چیلنج دیتا ہوں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ, قرآن اٹھاؤ, کل سے اس کو پڑھنا شروع کرو. دیکھو کتنا تم کو اس میں سمجھ میں آتا ہے, کتنا انٹرسٹ آتا ہے,
और कहां तक तुम कंटिन्यू कर पाते हो। चैलेंज ये ले लो और उसके बाद स्ट्रीम में आके बताना। ये चैलेंज देता हूं आप लोग। कोई भी मतलब कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में भी देखा जाए 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान बस वो लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है। बस वो लोग नाम के लिए मतलब एक मतलब मैंने कोई एक तकरीर में सुना था कि कुरान पाक बस एक ही टाइम में खुलता है जब किसी का इंतकाल होता है। खोला, पढ़ा, उसको बख्शा, बंद करके रख दिया। इससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है कुरान शरीफ का। बिल्कुल। अच्छा सुरैया जमाल शेख जी, सुरैया जी, आप जब से कमेंट जिहाद आप भी कर रही है, पहले वो अक्सा जी कर रही थी, अभी आप कर रही है, फेक प्रोपागेंडा, और साहिल इज नथिंग बट अ क्रिश्चियन पपेट। अरे सुरैया जी स्ट्रीम ज्वाइन करो और इस प्रोपागेंडा को एक्सपोज कर दो। अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा? मुल्ला मुफ्ती। अच्छा दीदी ने आओ बात ज्वाइन सही कर कही लो। हाँ कि कुरान को कोई जल्दी छूता नहीं है, कोई मर जाता है तो उसकी बख्शिश के लिए उतारते हैं। कुरान को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले पेज पे लिखा रहता है ला यमुस्सुहु इल्लल मुतahharun, जब हाँ। आप पाक ना हो तो इसको ना छुएं। मोमिन हर वक्त अरे अपने आप को नापाक समझता है, पता नहीं मैं इसमें भी पाक हूँ इख्तिलाफ नहीं। है हाँ, साजिद साहब, इसमें भी इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? ये इसमें इख्तिलाफ ये है कि भाई वो ये जो आयत है ला यमस्सु इल्लल मुतahharun, तो भाई कि ये कौन सी गंदगी की बात हो रही है, जिस्मानी गंदगी या रूहानी गंदगी? आप बिना वजू के किताब छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, इस बात में भी इख्तिलाफ है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है, और वो कौन से किसकी बात हो रही है? लोहे महफूज की बात हो रही है। वो दुनिया वाले कुरान की बात नहीं हो रही है। मतलब हर चीज में इख्तिलाफ है। अच्छा दूसरी चीज ये, जैसे कि शबनम जी ने कहा और साजिद आपको ही मालूम होगा कि जब मरने के बाद या कोई नियाज मतलब कुछ इवेंट होता है मुसलमानों के वहां, और ये बरेलवी लोग करते हैं कुरान खानी ये सब, वहां भी लोग तो नहीं करते, देवबंदी लोग में भी कुछ कुछ करते हैं भाई। ये लोग घर जा जाके पारे पकड़ाते हैं, और हाँ। जब किसी के घर पे जाके पारे पकड़ाते हैं ना, तो वो ना दिल में गाली देता है। क्यों? क्योंकि जबान से मना भी नहीं कर सकता कि नहीं पढ़ के दूंगा या नहीं पढ़ के दूंगी। अब वो ले लेता और सोचता है यार ये क्या मुसीबत है, जबरदस्ती का 2 पारे पकड़ा दिया। अच्छा एक तो फिर भी वो भी कैसा कर करके आदमी जो है वो कंप्लीट करता है। कोई कोई जो है वो कोई पढ़ने वाला मिलता नहीं है, तो ये कुरान खानी जो करते हैं वो 2-2 पारे पकड़ा देते हैं कि लो भाई ये खत्म करके दो। यानी वो पढ़ने में भी जो है लोगों को बोर मारता है। इतनी ऐसी किताब है। क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं ना, अरबी में आपने पढ़ना है, समझ आपको आनी रही है, तो यानी क्या करोगे पढ़ के? लाइक यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड के अंदर लिखा गया है। तो एग्जैक्टली क्या होगा? पढ़ने में बोरिंग भी चीज है है। ना, कोई कुरान पढ़ता है तो लगता है जैसे कि कोई मक्खी भिन-भिना रहा है। किससे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? आप ऐसे देख लीजिए तरावी वगैरह, दीदी आपने कभी सुनी होगी, तो तरावी इतना फास्ट पढ़ा उनको ना, एक दिन में 3 सबसे कम तो 3 पारा पढ़ते हैं, वरना 10-10 पारा पढ़ते नहीं हैं नहीं, एक एक रात एक में। पारा एक पारा एक पारा यार, एक पारा एक नहीं, से नहीं, सवा अपने पारा। यहाँ अपने यहाँ 27वीं तक हिंदुस्तान में ना, हम लोगों ने होता था कि 27वीं तक पूरा कुरान खत्म करना है, 30 पारे हैं, 27 दिनों में खत्म करना है, तो दैट्स लाइक सवा पारा अप्रोक्सीमेटली। लाला जी आप तो बहुत दूर है तब। इंडिया में ऐसा चलता है ना, 3 दिन 6 की वाली भी तरावी रहती होती है। है और 10 वाली भी होती है, 3 वाली भी होती है भाई, 10 पारे वाली भी वल्लाह होती है, हब्बी, लेकिन इतना फास्ट ऐसी पढ़ाते हैं, ऐसे तरावी पढ़ाएंगे। मस्जिद में तो मैं जाऊं ही ना, घुसूं ही ना। सबसे नहीं, कम नहीं, जो इसका पढ़ाते हैं इंडिया में, इसका मैं एक्चुअली नहीं जानता होता हूँ, है। इंडिया में सबसे कम 3 पारा, मतलब जिस तरफ मैं रहता हूँ 3 3 दिन पारा। की। अब साहिल साहब की तरफ मालूम नहीं कितना पारा पढ़ाते हैं, तो इतना फास्ट है वो, 3 पारा ही पढ़ाते हैं। अगर 3 घंटे में पढ़ाना होता है तो कैसे पढ़ाएंगे? यालमून तालमून, सिर्फ यालमून और लास्ट का तालमून ये समझ आता है, उसको बाद करके मिला देते हैं। अच्छा मैं भी कभी जाता हूँ कुरान खानी वगैरह में, तो 3-3 पेज एक साथ पलट देता हूँ, लास्ट में लड्डू मिलता है। भाई लड्डू कौन छोड़े, मसला ये है ना। 2 पारा पढ़िए, Yes, that's 2 a good पेटी one. लड्डू। हाँ, तो 3 पेज 4 पेज एक साथ पलट दो, और
रखने के बाद भी मुंह हिलता रहता है, लोग समझे कि हाफिज साहब और इमाम साहब माशाल्लाह अभी तक तिलावत फरमा रहे हैं रखने के बाद भी। एक पारा तो एक्स्ट्रा हो गया होगा उनका। उनको क्या पता है कि बीच में मैं याद करता रहता हूँ कल कौन सी स्ट्रीम करनी है मेरे को। यार साजिद तू बहुत ही बदतमीज शख्स है। अच्छा, उस पे अभी बात चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी इस पे ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून पे, तो मैं ये देख रहा था, पूछा गया कि आयत करीमा ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून की रोशनी में कुरान मजीद को बावजू होकर ही छूना जरूरी है। तो ये कहते हैं नीचे इमाम मालिक का फतवा है, वो कहते हैं कि बच्चों को वजू के बगैर कुरान पकड़ने की इजाजत दी है लेकिन बड़ों को नहीं। हाँ, और ये अहले इल्म का इस बारे में इख्तलाफ है कि आयत करीमा ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून जो कि सूरह वाक़िआ 79 से मुराद फरिश्ते हैं या बनी आदम। बोला था ना सल्फ की मैंने साजिद। जमात, हाँ इस पे भी इख्तलाफ भाई, इतनी छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ है वल्लाह हबीबी। सलफ की एक यार जमात इस बात की कुरान कायल की है कि किसी महफूज बात इस में पे फरिश्ते हैं। इख्तलाफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि इससे बनी आदम मुराद है इंसान, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। तफसीर इब्न कसीर वगैरह में इब्न अब्बास से यही मरवी है कि दीगर अहले इल्म ने इस बात का इतलाक बनी आदम से लेकर जनाबत और हदस असगर, छोटा हदस यानी पाद मार दिया अगर आपने, है ना, छोटा कज़ाए हाजत वगैरह से बजू बेवजू पर किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ खबर बमाने तलब है। अच्छा, ला यमुस्सुल मुताहहरून यानी तहारत के बगैर कुरान को छूना जायज नहीं है, ना छुआ जाए। क्या कर सकते हैं भाई, इसीलिए बाज लोग नहीं छूते कि नहीं मैं वजू से नहीं हूँ या फिर मैंने कुछ भी कर दिया, मैं गंदा हूँ, तो नहीं छूते, रखे रहते हैं ऊपर। कभी उसको नीचे भी उतारते हैं तो काफी धूल मिट्टी जमी रहती है, उसको हटाते हैं। तो कौन पढ़ने जाए, और मीनिंग वाला तो कोई रखता नहीं अपने घर में, सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। हाँ शबनम जी और कुछ ऐड करना है, फिर हम कोई मोमिन लोग से भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक पे कोई मोमिन से अभी तक बात नहीं हो पाई है। कुछ और ऐड करेंगी आप? जी एक्चुअली मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी पहले तो कि आप लोगों के टॉपिक में मैंने इंटरप्ट किया, बट एक बात नहीं मैं कोई और मुश्किल कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरे आज आप लोगों की लाइव स्ट्रीम में आने का एक रीज़न और है। जी। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो हिंदू है। ओके। पिछले 8 साल से हम लोगों का रिलेशन चल रहा है। हम्म। सो जब मैंने आपको बताया कि बीच में एक फेज़ था मैं नमाज़ पढ़ती थी एंड ऑल, लगभग देखा जाए तो उसी वक़्त मैं उनसे मिली थी एंड धीरे-धीरे मुझे हर एक बात समझ में आया और वो एक्चुअली लाइक एडम भाई, वो एडम भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आने का मेरा एक रीज़न वो भी था कि आप लोगों से थोड़ा बात हो पाए। हमसे क्या चाहती है आप वो बता दे तो हम अपने नहीं, हिसाब पहले से तो मुझे ये गाइड कर बताइए, देते। 8 साल से आपका रिलेशन चल रहा है, क्या बच्चे पैदा करके शादी करनी है? लाइक 8 साल से रिलेशन कौन चलाता है भाई? अपना कोई गोल है, अपना ड्रीम्स पूरा करना है, वो ड्रीम्स पूरी होने के बाद आराम से होगा शादी। नहीं तो क्या मतलब शादी करके ड्रीम पूरा कर लो? क्या है ये 8 साल से रिलेशन चल रहा है, क्या हो क्या रहा है 8 साल में? क्या करना है? पूरी दुनिया फतेह करके शादी करनी है? ऐसा भी नहीं है। लाइक 8 साल भाई, कोई मतलब 8 ऐसा महीने की बात नहीं हो रही, आपसे 8 आपसे साल। आप लोग तो बेहतर ही समझते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आप तो बेहतर समझते हैं। हाँ ना, तो करो बात मुकाओ आप अब 8 अडल्ट है साल। शबनम जी, आप अडल्ट है? जी, जी। 8 साल इस्लाम पहले वाली अडल्ट थे? अडल्ट नहीं, 9 साल वाली नहीं। 18 साल। जी नहीं, मैं लीगली एडल्ट हूँ। हाँ, मैं लीगली एडल्ट हूँ। अच्छा लीगली अडल्ट है ना, तो देखिए डिसीजन लीजिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या, आप जो है वो अगर आप इस्लाम को नहीं मानती है तो जी। नहीं, उसके लिए भी फिर चूंकि आप हिंदू नहीं है, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो हिंदू है, तो भी आपको जी, स्पेशल मैरिज एक्ट से ही करना पड़ेगा। तो है जी। ऑप्शन, आप जाइए, आप सक्षम बनिए और किधर अलग जगह पे जाके सेटल होइए, कोई मुश्किल नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वंस अगेन, अगर आप किसी के साथ अपनी जिंदगी भर रहने का इरादा कर रही है तो बहुत सोच समझ के और तहकीक करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कैसा है ना कि ऐसा नहीं है वन टाइम वाला खेल, ये आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, मतलब मुस्लिम आपस में शादी करते हैं या फिर नॉन मुस्लिम आपस में शादी करते हैं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अगर शादी की बात है तो। और जी, जी, जिंदगी गुजारनी बिल्कुल। है, यहाँ बुढ़ापा नहीं। पे जी, जी, जी। और जी, जी, यहाँ पे जिंदगी वैसे गुजारनी शादी है। का बात
शादी का बात देखा जाए तो वैसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू है इसीलिए मैंने प्यार किया, वो इंसान अच्छे है इसलिए प्यार हुआ है। सो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इस्लाम, हिंदू ये वो, बस हाँ, इंसान सही होना चाहिए और हर मोड़ पर सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आपको डिसाइड करना है, देख सोच समझ के आप फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है प्यारे भाई, प्यारे भाई बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है शबनम जी, 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शबनम जी के लिए गुलाब हो जाए। आज शबनम जी की वजह से हैट्रिक हो गई हमारी, 3 विकेट एक साथ डाउन। और मोमिन नहीं, मुल्लाओं की दुकान बंद, The द damage has डैमेज been हैज done. बीन डन। मुल्लाओं के पिछवाड़े बंद, द डैमेज हैज बीन डन। बेचारे जो है वो खून के आंसू रो रहे होंगे, जो जो अभी सुन रहे होंगे, क्या करे यार। इसीलिए मैं मुल्लों के कहता हूँ कि पिछवाड़े में, हाँ अच्छा नहीं मैं दूसरा का, मुल्लों के पिछवाड़े में द डैमेज हैज बीन डन। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आओ और इस्लाम को सच्चा साबित कर दो। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं शायद वो बच जाए। अगर आप उन मौलवी हजरात से, उन इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, अगर आप अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर बैठेंगे तो यकीन जानो कि आगे चंदा बंद हो जाएगा आपका, और चंदा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप। बेहतर ये है, सरवाइव करना है तो आपने आके इस्लाम को सच्चा साबित करना है। ये बात ध्यान रखना। ये बात हो गई अब तो। हाँ, मुल्लों की दुकान बंद, the damage has been done. हाँ। चलिए नेक्स्ट, आई होप कि ये मोमिन है। अरे क्या इनका, ये तो देखो, पीस फॉर इस्लाम, इस्लाम शांति का प्रतीक है। भाई यार ऐसे वैसे जोक बड़ा क्यों हौसला है मारा यार, करते बड़ा हैं? बड़ा हौसला है यार इन लोगों का, बड़ा हौसला है झूठ बोलने का यार। मेरे झूठ बोलने के लिए बड़ा हौसला चाहिए साहिल यार, ये बहुत हौसला है यार इन लोगों का, बहुत हौसला है। भाई पीस फॉर इस्लाम साहब अनम्यूट कर ले। ये नहीं बोलेगा कभी भी, ये अक्सर आता है, बोलता नहीं है, अच्छा नहीं बोलता है तो जुड़ता क्यों है फिर ये? बस इस्लाम की इसीलिए तरह जुड़ता है कि खामोश है बस। ये। पीस फॉर इस्लाम यार बोला नहीं 5 बोलता तक, ये। ये 5 नहीं तक बोलता गिनूंगा है। भाई, फिर निकाल दूंगा। 1 2 3 4 पंजी। 5 सेकंड भी वेस्ट किए तूने। एक 20 वाला 4.5 वाला ऑप्शन भी रखा करें साइड से। स्मिथ भाई। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी साहब, मोमिन है सर। अच्छा, नहीं मैं मोमिन कुछ नहीं हूँ, मैं बचपन से एथिस्ट हूँ। लाला जी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है कि वो बचपन से ये थी ऐसे। हाँ ठीक है। स्मिथ भाई तो फटक से हाँ, पहली फुर्सत में ब्लॉक होने से पहले स्टूडियो छोड़ दो। तुम जब से स्टूडियो जो है वो ब्लॉक करके रखे हो स्पेस, पहली अच्छा फुर्सत में आपको कुछ अच्छा, इंपॉर्टेंट कहना होगा, थर्सडे जुड़ जाना सर। थर्सडे, अच्छा ठीक है। टाइम, उसका टाइम क्या है? 12:30 बजे सर। 12:30, ठीक है, ओके थैंक्स। यार ये जो मैं इंसान, भाई इंसानों से हम ट्यूसडे और फ्राइडे इंसानों से बात नहीं करते। मैं इंसान जल्दी छोड़ दे भाई। ट्यूसडे और फ्राइडे हम इंसानों से बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इंसानों को काम ही नहीं है आज की स्ट्रीम में। आज की स्ट्रीम में इंसानों का काम नहीं है। आज बहुत ज्यादा है यार ये नॉन मोमिन जुड़ रहे हैं, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे आज की स्ट्रीम भी जो है हैवानियत पर है। यार जरा हैवानियत जैसा 2-4 काम ब्लॉक उसमें मारो किया ना है। यार, खुद ही सही हो जाएंगे। 2-4 ब्लॉक मारो। भाई आज कम से कम 20 ब्लॉक हुए हैं फिर भी जुड़े जा रहे हैं नॉन स्टॉप। सुनते भी नहीं यार। पूरा पूरा स्टेज, बैक स्टेज जो है वो ये लोग की वजह से ही भर के रह जाता भाई। अब ये तलाशु दिनेश है, ये नॉन मोमिन है, बोल भी रहे फिर भी नहीं छुप रहे, क्या कर रहे? फिर लोग कहते हैं यार मोमिनों से डिस्कशन नहीं कर रहे, आप लोग अपनी बातें कर रहे हो। भाई बैक स्टेज में जगह होगी तो करेंगे ना।
हाँ भाई, पीस फॉर इस्लाम। नहीं बात करेगा, आवाज आ रही है? ये दूसरे वाला आ गया। हेलो, आवाज आ रही वही है? वाली आ रही है, आ रही है, फाइनली आई। हाँ, अभी पहले भी मैं बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको, मैंने मैसेज भी किया था। ओ, अच्छा सर, मोमिन है आप? हाँ मोमिन है अभी तक? हाँ, अभी बीच में थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैंने इमाम साहब से पूछा तो उन्होंने फिर कुछ बातें बताई, तो फिर ऐसा उन्होंने लगा जलेबी दी हाँ। और आपने जलेबी खा ली। नहीं, उन्होंने कहा ना कि अपने जो 5 पिलर हैं उनको मजबूती से पकड़े रखो, जैसे नमाज पढ़ते हैं तो वही हाथ भी ना, डूबता उन्होंने है, उन्होंने आपको गोली दी, सर्कुलेशन। उन्होंने आपको गोली दी और आपने गोली ले ली, राइट? नहीं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छा बताया उन्होंने काफी। अरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए योगा जकात सबसे देते इजी रहे, है भाई। अगर ब्लड सर्कुलेशन जकात करना तो से योगा किसी कर गरीब लो। का फायदा होता है, कहाँ रोजा रखने ज़कात से से? नहीं, मुसलमानों का किसी फायदा गरीब होता की है, भूख गरीब का का नहीं पता होता। चलता है। मुसलमानों का फायदा होता है, गरीबों का नहीं, फर्क है। नहीं, रोजा रखने से भूखे लोगों का पता चलता है भाई। अच्छा एडम नहीं, साहब, एडम साहब जी और जी पीस जी ऑफ, जी। मैं चाह रहा हूँ एडम साहब आप इस तरीके से इनके साथ जाइए, पहले तो टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलो इनका टेस्ट ले लो। ध्यान किस चीज से भटका था, ये इस्लाम से दूर हुए थे, और उस पे इनको क्या सोल्यूशन मिला था, फिर हम उस पे सवाल करते हैं, है ना? वैसा बेहतरीन, करें वल्लाह एडम साहब? हबीबी, वल्लाह हबीबी, यार आप बहुत जीते हैं यार, आप वहां से सोचते हैं जहां से हम नहीं सोचते, जबरदस्त, तभी तो हम आपको जबरदस्त। मानते हैं। जी पीस फॉर इस्लाम साहब आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु। इल्लल्लाह। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आगे बढ़ो। हाँ नहीं, पूरा सही से याद नहीं है, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन जल लजी यशफहु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यालमु मा बैन अयदीहिम व मा युहितूना वमा बिशैइन इल्मिहि खल्फहुम बिमा वसिअ व मा खल्फहुम बिशैइन इल्मिहि बिमा वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अगर अल्लाह माशाअल्लाह। किसी को इनमें सजा देगा ना उल्टी सीधी आयतुल कुर्सी पढ़ने पे, तो तू टॉप पे होगा मेरी जान। नहीं, लाला इससे जी भी ये खतरनाक इन्होंने आए हैं भाई। नहीं, इन्होंने फिर पढ़ा इससे भी था खतरनाक आया है। वसिया नहीं, कुर्सी उन्होंने क्लियर पढ़ा, ये करा था हमको ना, लगा कि काफिरून के अंदर बता दिया गया था कि भाई जिनको तुम मानते हो उनको हम नहीं मानते, जिन माबूदों को, और तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। काफी अच्छी बातें मतलब उन्होंने अच्छा सिखाई थी, वो एक बात क्लियर बताओ, कर। अच्छा जी जो जी सवाल किया पहले वो करो, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ तुम्हें। जी हाँ। तो उन्होंने ये बताया ना कि भाई जो कुल अरे यऊब जो का सवाल अपना साहिल ने किया है पहले उसका जवाब दो, फिर तुम्हें बताते हैं अगला। अच्छा पीस फॉर इस्लाम साहब, जी जी हाँ। 3 वो बातें बताओ जिसकी वजह से आप इस्लाम से दूर हो गए थे, मतलब 3 ऐसी बातें जो आपको इस्लाम में सही नहीं लगी थी, पहले वो बताओ। आपने एक मैं बार वो बताया था काम करता हूँ, माले मैं गनी। नोटपैड लेके आ जाता हूँ, नहीं, 1 मिनट। ये सॉरी, आपने कुरान के अंदर बताया था 1 मिनट माले, रुको ना, सॉरी। अरे 1 मिनट रुको तो सही प्यारे, रुको ना, क्योंकि कैसा इलाज थोड़ा सही तरीके से हो जाए ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाँ, 3 चीजें आपको बताना है, क्या गलत आपको पहले लगी थी इस्लाम में, वो पहले बताइए, जो आप इस्लाम से दूर हो गए थे। जी। फर्स्ट चीज, आपने एक डिस्कशन काफी 2-3 बार मैंने इस पे सुना था, मलकल यमीन के बारे में आप बता रहे थे, तो सेक्स ये चीज स्लेवरी तो के कभी बारे आज तक हमने सुन हाँ, ये चीज हमने कभी सुनी नहीं थी, तो बड़ा में। ओके, ताज्जुब हुआ था, लेकिन वो उसके बारे में मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो काफी गलत हुआ, लेकिन जब पूछा गया इसके बारे में इमाम साहब से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ओके, इस एक चीज पे मिनट, एक ध्यान। मिनट, वो बाद में एक बाद में बाद में वो यार बाद एक में वो मिनट, बाद एक मिनट, सेक्स स्लेवरी पे आपने जो हमारी बातें सुनी, आपको लगा ये बहुत वाहियात चीज है, ये एक खुदा इस तरीके का हुक्म नहीं दे सकता, एक ये चीज थी। दूसरी, हाँ, दूसरी थी वो आप 6 साल की बताते हैं, वो आज तक कभी जिक्र कभी किसी हमने तकरीर में भी नहीं सुना। 9 साल की 6 जरूर बताते हैं वो, कितना बताते? 9 साल की बताते 9 हैं, साल, मतलब कोई नहीं, 9 9 साल साल की की बताते बच्ची, हैं। अडल्ट। आयशा वाला मैटर भी जो है वो आपको खराब लगा था, ठीक है। तीसरी चीज, हाँ, तीसरी चीज आप बता रहे थे भाई वो कूड़ा उड़ा फेंक देती वो हदीस, वो काफी ज्यादा अब आ, बताते हैं ना, नबी के ऊपर जो कशा फेंका करती थी जो बुढ़िया, और उसको हाँ, एक दिन कूड़ा समाधा फेंकने वाली हदीस झूठी है, बल्कि हदीस है ही नहीं, है ही नहीं। प्रोपागेंडा। हाँ अच्छा, ये 3 चीज मेजर चीज थी जिससे आप इस्लाम से दूर गए थे।
एडम अभी हाँ, हाँ, माइक गोज टू यू, चले आप जी, इनसे पहला पूछ ले। पहला फिर सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको क्या जवाब मिला सर अपने मौलाना से? सेक्स स्लेवरी के बारे में पता चला था कि अगर आप रोजे रखते हो और रोजा अगर आपका छूट जाता है तो आप गुलाम को आजाद करो, और नबी ने ये हुक्म भी दिया था। ये चीज वो नहीं बताते, वो इसमें साल्ट मिला करके जो पेश करते हैं ना तुम लोगों को कोई भी, तो वो इसमें साल्ट मिलाते हैं और फिर आपको पेश करते हैं और तुम समझ जाते हो कि हाँ ऐसा ऐसा ही है। नहीं, तो तुम ओके, तो कुरान को अच्छी तरह से पढ़ो। इससे तो ये बात साबित हुई कि आपके इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, क्योंकि स्लेव को तभी आजाद करोगे जब होगा नहीं तो आजाद कैसे करोगे? तो ये तो बात हमारे साइड में जाती है। तो आपके हाँ, मौलाना ने ये क्या बताया कि सेक्स स्लेवरी नहीं है कि है? सेक्स स्लेवरी के बारे में बात नहीं बताई उन्होंने, फिर तो उसको यूं फिर बताया था आपका गुलाम आजाद करो। वापस रिवाइंड करते हैं। जी जी गुलाम जी आजाद जी, हाँ, करने के लिए गुलाम होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। बेहतरीन। तो नाउ द क्वेश्चन रिमेन द सेम कि इसका मतलब है स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी है ना? तो अब मुझे हाँ, बताओ कि फिर आपने फिर इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे किया, जब आपको तो इसके बारे में जवाब भी नहीं मिला कि सेक्स स्लेवरी बुरी है, और आपके मौलाना ने बताया कि हाँ इस्लाम में स्लेवरी है और गुलाम को आजाद भी करना है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि हमारी बात तो सत्य निकली। तो आपके मौलाना ने आपको क्या बताया? लेकिन फिर इसका अजाब भी तो काफी अरे ज्यादा भाई, है ना आजाद कि तो सारे ही करते हैं ना, रोमन्स भी आजाद करते थे, सारे लोग आजाद करते थे। अजाब आजाद अजाब गुलाम अगर अजाब आजाद जहन्नुम नहीं की है ना, आग, ओके, कहाँ अजाब पे की बोल किस रहा हूँ मैं। किस किस बंदे को गुलाम रखने पे अजाब है? फिर इसका मतलब है मोहम्मद भी जहन्नम की आग में है, क्योंकि उसके पास भी गुलाम थे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ब्लास्फेमी ना लेना, क्योंकि मोहम्मद साहब के पास भी गुलाम थे, तो इसका मतलब है वो भी जहन्नम में जाएंगे। मोहम्मद साहब के अबू अबू जो है अबू, क्या नाम था यार उसका, बिल्लियों वाला, अबू हुरैरा के पास भी गुलाम थे, ठीक है, हाँ हाँ, वो भी फिर जहन्नम में जाएंगे। हजरत अली के पास गुलाम थे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। अगर गुलाम रखने वाला जहन्नम में जाएगा तो फिर ये सब भी जाएंगे। तो ये तो क्या आप कुरान समझते शरीफ हैं के अंदर कि तो लिखा, एक ही जी जी सेकंड, कुरान शरीफ के अंदर तो बताया गया सूरह निसा की आयत के अंदर दूसरी तीसरी चौथी के अंदर, वो यतीमों के बारे में बता रहे थे कि यतीम थे जिनसे आप अगर उनके साथ अच्छाई करो, हम और यतीमों की अच्छाई बात नहीं नहीं कर कर रहे ना, हम सको। इस वक्त गुलामों की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त यतीमों की बात नहीं कर रहे, गुलामों की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको वो उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता, जाना पड़ेगा। हाँ उसके लिए उनको आपको उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता जाना रहे थे वो। पड़ेगा। हाँ हाँ, सर सुने, वो यतीमों की बात हो रही है, गुलामों की बात नहीं हो रही। गुलामों के बारे में पढ़ना है तो सूरतुल मोमिनीन के बारे में जाना पड़ेगा, या चैप्टर नंबर 33 में जाना पड़ेगा। तो वंस अगेन आप गुलामों को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं यतीमों से? यतीम डिफरेंट चीज होती है, यतीम तो बच्चे होते हैं, गुलाम तो गुलाम होते हैं। हाँ बिल्कुल, गुलाम गुलाम ओके, तो होते हैं, हाँ। गुलामों की बात बताएं मुझे, यतीमों की नहीं। हाँ, गुलाम गुलाम की बात है, सही है। अच्छा, आप बता रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा था उनसे। पहले पहले आपके 3 पॉइंट, फिर कोई और टॉपिक। दुनिया के सारे टॉपिक हाँ के मैं, जवाब दूंगा, पहले हाँ ये 3 पॉइंट। हाँ, तो मैं इसी का ही बता रहा हूँ, तो सेक्स सेक्स स्लेवरी पे ही स्लेवरी बता पे रहा हूँ मैं आपको। सेक्स स्लेवरी पे बता रहा हूँ, आप बता रहे थे मैं कितने से बेटा था या किससे था मुझे पता नहीं, लेकिन आप बता रहे थे कि जो बेटा पैदा हुआ था वो इब्राहिम जो था वो सेक्स स्लेवरी से पैदा हुआ था, एक गुलाम लोंडी से। इश्माइल गुलाम लोंडी से पैदा हुआ था, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, तो वो कहे कि भाई जो इनके हक में हुकूक में इनके जो आ जाती है अंडर में, वो इनकी बीवी हो जाती है, मतलब निकाह निकाह में आ जाती है, ऐसा कुछ किसने बताया क्या था निकाह उन्होंने। में आ जाती है? उस जमाने में निकाह तो था ही नहीं। मुझे साबित करें कि उस जमाने में निकाह था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे साबित करें कि उस जमाने में इब्राहिम के पास कोई भी कवनेंट आया हुआ था, इस्लाम में आया हुआ था कवनेंट। इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम के पास इस्लाम था, तो इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम स्लेवरी रखता था, क्योंकि इस्लाम स्लेवरी को इंडोर्स करता है। असल इब्राहिम के पास तो कोई कानून आया ही नहीं था, उसको तो अभी सिर्फ ये कहा गया था कि इस इलाके से निकलो और दूसरे इलाके में जाओ। रास्ते में वो रोमन्स के पास चला गया, और रोमन्स कह रहा हूँ, इजिप्शियन इजिप्शियन किंग के पास चला गया, और इजिप्शियन किंग ने उसकी बीवी को, इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की बीवी को ये लड़की दी थी एज ए स्लेव, ठीक है, क्योंकि वो स्लेव उसने दी थी, उसने दी थी। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस चीज को मानते हो
تو اس کا مطلب ہے تمہارا دین تو پھر غلط ہوا, تم تو ابراہیم کو ستے مانتے ہو, جبکہ جو باقی کے جوز اور کرسچنز ہیں وہ تو ابراہیم کو ستے پہ نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا پہلے کا زمانہ تھا جس زمانے میں ابھی وہ حنفا تھا, وہ حنیفہ تھا, وہ حنیفہ جو تھا وہ پیگنزم ہے, حنیفہ جو ہے وہ اس کا علیحدہ دین ہے, جو کہ جس ٹائم پہ وہ پلرز کی پوجا کرتا تھا, جس علاقے میں تھا وہ پلرز کی پوجا کرتے, پلرز مینارے. تو ابراہیم جو تھا وہ تو حنفا تھا, میناروں کی پوجا کرنے والا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اگر ابراہیم کو ستے مانتے ہو تو پھر ایک اور پرابلم نکل آیا, آپ لوگ تو سلیوری کو انڈورس کر رہے ہو. یہ بات بھی صحیح ہے. اوکے, تو آپ ونس کی اگین آپ کے مولانا نے سلیوری کے اوپر تو آپ کو آنسر نہیں دیا, آپ کو گولی کرائی, اور گولی کرانے میں تو ثابت ہوا کہ جناب پھر محمد صاحب بھی جہنمی ہے. اگر ہر کوئی جو سلیو رکھے گا جہنم میں جائے گا تو محمد صاحب بھی جہنمی ہے. اگر محمد صاحب جہنمی نہیں ہے تو سلیوری اوکے ہے, اگر سلیوری اوکے نہیں ہے تو پھر محمد صاحب بھی جہنمی ہے. تو بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سلیوری پہ آنسر نہیں ملا, آپ آگے کیسے چلے گئے مولانا سے؟ انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں زیادہ سوچو مت, کیوں اس نہ پہ سوچو, یہی تو دیکھو بات ہے, مت. دماغ بند کر لو. اچھا ہم لوگوں نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن تم اپنا دماغ بند کر لو, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی. واللہ حبیبی یہ تو ماشاءاللہ ہو گیا کہ مولانا نے کہا کہ تم اپنا دماغ بند کر لو, اس کے بارے میں سوچو نہیں, اس کے بارے میں بولو نہیں, اپنا دماغ بند کر لو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نماز آتی ہے, میں نے کہا آتی ہے, تو انہوں نے کہا بات کی یہ بات ہے, سورۃ نماز القرآن. سماز بات کی بات ہے, جو تو سوال تم انہوں نے نے کہا کیا نماز تھا. پہلے سیکھو پھر ان باتوں کو سیکھو. ارے بھائی پہلے بات کی بات نہیں ہوتی, پہلے مجھے یہ بتانا ہے اب آپ نے کہ جب آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا تو آپ نے مولانا سے اگلے پوائنٹ پہ گئے کیوں؟ انہوں نے کہا نا پہلے اس لائق بنو. کس لائق بنو؟ اس لائق بنو اس کے سلیو رکھ سکو جب تم دماغی طور پہ نہیں, بالکل اندھے ہو جاؤ گے. ہاں میں انہوں نے کہا بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا, جو آپ کو نہیں کہا وہ میں بتاتا ہوں کہ جب تم پہلے یہ کام کرو, تقوی اختیار کرو, جب تم دماغی طور پہ بالکل اندھے ہو جاؤ گے, تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے باہر نکل جاؤ گے, اس وقت جب میں تمہیں سلیوری کا بتاؤں گا نا تو تم چپ کر کے سن لو گے, کیونکہ اس وقت میں نے تمہارا دماغ پہلے ہی بند کر دیا ہوا ہے. ابھی تمہارا دماغ کھلا ہوا ہے, لہٰذا ابھی تم سوچنا بند کرو, اس چیز پہ سوچو ہی نہیں. That is exactly what he said. ہاں یہ بھی پوائنٹ ہے آپ کا, بالکل یہی ہے. اوکے, پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا جناب ساحل صاحب؟ پوائنٹ نمبر 2 پڑھیں ذرا. پوائنٹ نمبر 2 آپ نے دیا تھا جناب 9 سال کی بچی عائشہ والا میٹر. جی سر, اس کے اوپر آپ کو کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا کہ وہ 9 سال کی بچی سے انہوں نے جو نکاح کیا تھا, تو وہ انہوں نے نکاح اس ٹائم پہ 9 سال کی بچی ینگ ہو جایا کرتی تھی سعودیہ میں, اچھا ایسا کچھ بتایا اس تھا سال, انہوں نے. اوکے, اس ٹائم پہ 9 سال کی بچی ینگ ہو جاتی تھی, تو 53 سال کا ہاں بابا پھر بابا ہو جاتا ہوگا اوبویسلی. اگر 9 نہیں سال کی بولتے بچی ینگ ہو وہاں جاتی کا, تھی تو 53 سال میں تو پھر بابا قبر کے اندر پیر رکھا ہوا ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے. یہی اوکے, تو چیز مجھے قبر میں لگ پیر کھٹتی تھی. رکھے ہوئے بابے سے 9 سال کی بچی کی شادی کیوں ہوئی؟ نہیں, اسی چیز سے میرا بھی سر گھوما تھا, لیکن انہوں نے کہا وہاں کا کھان پین اچھا تھا اور یہ چیزیں تھی. ٹھیک ہے, آپ وہاں کھان گئے پین تھے اچھا کیا؟ تھا. 9 سال کی بچی جو ہے نا 14 سال کی بچی کے برابر لگتی تھی, اونچی چوڑی ہوتی تھی, چوڑے گاٹے کی ہوتی تھی. عائشہ تو میں کہتا ہوں کمال ہی پپو بچی تھی, بہت ہی اونچی تھی, جن تھی پوری کی پوری. سوال یہ ہے کہ اس پوری کی پوری جننی جیسی عائشہ کے ساتھ اگر 53 سال کا بابا شادی کر رہا ہے تو 53 سال کے بابا بھی تو پھر مرنے جوگا ہوا ہے نا, قبر میں پیر ہیں اس کے. جی ہاں. تو 9 سال کے اندر عائشہ تو رہ گئی بیچاری ادھر کی ادھر ہی ٹھلا بجاتی ہوئی. 18 سال کی عمر میں محمد مر گیا, اور اس کے بعد 18 سال کی جوان لڑکی 18 سال کی جوان لڑکی اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی, کہ محمد نے کہہ دیا تمہاری میری ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں, لہذا بابا جی کا ٹھلو. ہاں یہ بھی تو ہے تم نے بالکل. ایک لڑکی کو اتنا ذلیل کر دیا کہ نہ وہ بچے رکھ سکتی ہے اپنے, نہ وہ شادی کر سکتی ہے, نہ وہ جاب کر سکتی ہے, وہ ملک کے حکمرانوں کے پیچھے تلوے چاٹ رہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو, مجھے کھانے پینے کے کپڑے لتے دے دو, مجھے کچھ غربت میں کچھ نہ کچھ دے دو, کیونکہ لڑکا مرد اس کے پاس ہے نہیں, شادی وہ کر نہیں سکتی, جاب وہ کر نہیں سکتی, کیونکہ محمد نے ماں عورتوں کو عائشہ, پردے میں ڈال دیا. ایک سیکنڈ, محمد نے عورتوں کو پردے میں ڈال دیا اور عورتیں اب جاب نہیں کر سکتی, کام نہیں کر سکتی, جبکہ محمد سے پہلے عورتیں کام کرتی تھی, کاروبار کرتی تھی.
मोहम्मद की पहली बीवी खतीजा इतनी बड़ी खतीजा। कारोबार वाली औरत थी कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ नौकरी की, नौकर था खतीजा का। लेकिन आयशा जब 18 साल की हुई, उस वक्त आयशा ना नौकरी कर सकती है ना कुछ और कर सकती है, और वो उसको जलीलो ख्वार करके रख दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? इनको माँ आयशा का दर्जा मिला, इनको उम्मतुल मोमिनीन अम्मा का। आयशा 18 साल की तुम्हारी अगर बहन, बेटी, भाई, कजन कोई हो तो उसे देखो, उसको अगर 40-45 साल की, 50 साल की औरत अम्मा कहेगी ना तो चपेड़ मार के मुंह तोड़ देगी, और यही काम आयशा ने कहा था। कुरान की आयत मोमिनों की माएँ, मेरी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, उस आयत की तफसीर दुर मंसूर और तफसीर अल कबीर कहती है कि अम्मा आयशा को एक औरत ने अम्मा आयशा कह के बुलाया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं बगैरत, मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूं। इतना उसे माँ गुस्सा चढ़ा आयशा था। को फक्र नहीं था, माँ आयशा को कहां से फकर था? उम्मतुल मोमिन। कौन सा पकड़ था? कौन सा पकड़ था? मुझे बताइए कौन सा पकड़ होगा कि 53 साल का बाबा उसे शादी कर ले, 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स करे, उसको मोलेस्ट करे? किस लड़की को फकर होगा इसके ऊपर? कोई है फकर वाली नहीं हदीस? नहीं, उम्मतुल मोमिनीन का दर्जा मिला जिसका पे। कौन सी उम्मतुल मोमिनीन? वो तो वो रोती रही। उसने कहा औरतें, तुम औरतें मुझे मत मांगो, क्यों कह रही हो? कौन सा पकड़? ये कौन सा पकड़? ये किस चीज सही का हदीस पकड़? में लिखा हुआ है। उन्होंने उनको किसी ने चिढ़ाया, जिसपे किसी ने उनको माँ बोला, अम्मा आयशा बोला, तो फिर उन्होंने उस पर गुस्सा किया। उन्होंने उस पर गुस्सा नहीं किया क्या? अगर गुस्सा, अब मुझे बताओ, अम्मा आयशा ने कहा गुस्सा किया, तो अम्मा आयशा को तुम लोग को अम्मा कहते हुए भी शर्म नहीं आती? 18 साल की लड़की को अम्मा कहते हो तुम, 9 साल की लड़की को अम्मा कहते हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे भी 20 साल की 22 साल के होने के बाद में निकाह करते हैं। इसी वजह से मुझे भी ये बुरा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर 18 साल की बच्ची को या मतलब लड़की को अगर अपन माँ कहेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही। और फिर 18 साल की उम्र में उसको छोड़ के चला गया मोहम्मद, और अब वो किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, अभी हमारी सिस्टर की ओके, भी शादी करेगी दोबारा। फिर अब अगर तुम्हारी सिस्टर, गॉड फॉरबिड तुम्हारी सिस्टर 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती, 18 साल में उसका खावंद मर जाता, तो क्या तुम उसकी दूसरी शादी ना कराते? नहीं कराइए ना, हमने तो करा दी, अभी हो गई थी 22 तो फिर वो 22 साल आयशा की जो एज है में वो शादी बगैर हुई मर्द थी। के कैसे जिंदा रही? आयशा बगैर मर्द के, सोचो कैसे जिंदा रही अच्छा होगी बगैर मर्द एडम के। साहब, और फिर एक दूसरी पॉइंट बात, में, सॉरी एडम, सिर्फ एक पॉइंट में ऐड कर देता हूं, फिर आप इसको आगे लेके जाना डिस्कशन को। ये जो भाई बोल रहे हैं ये फकर की बात है, अम्मा बना दिया, अम्मा बना दिया। इंसान की ये फितरत होती है एडम साहब, और ये पीस फॉर इस्लाम साहब भी इस चीज को मानेंगे कि अगर अपनी एज का, आसपास का एक 7-8 साल 10 साल जो अपने से कम है, वो भी अगर सामने वाले को अंकल बोल दे, आंटी बोल दे, माँ जी बोल दे, सामने वाला चिढ़ जाता है।